Hi student, my name is Jatin Chavan and today we are starting subject media study. So we have learned first of all we have learned for chapter 4th, which is, so student, we have seen agenda setting theory, and today we will be starting cultivation theory. It's given by Giorgio Glebner in 1986. So student, cultivation theory is nothing but it says that study of examining long term effect of cultivation theory. See here, cultivation theory is a study of long term examining effect of television. मीन्स लोगों पे टीवी देखने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उनके लाइफ में, किस तरीके, अगर समझो आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते तो आपका परसेप्शन, आपका जो लाइफ इफ़ेक्ट है टीवी देखने से वो क्या हो रहा है, इसी बारे में जॉर्जियो गैबनर ने एक स्टडी की थी, उसे कहते हैं कल्टीवेशन थियरी. सो you can see here, Gabner studied the effect of television on people perception regarding crime. So student, main feature of this theory is nowadays you can see that television are highlighting crime report more and more on their TV shows. So what effect is going towards a viewer ऑफ ए क्राइम रिपोर्ट? एक क्राइम का रिपोर्ट अगर बार बार करवाया जा रहा है तो दुनिया को और व्यूअर्स को उसका किस तरीके का संदेश पहुंच रहा है, उसे कहते हैं गैबनर कल्टीवेशन थियरी. ओके, सो यू हैव नोन द बेसिक मीनिंग ऑफ गैबनर थियरी. So Gabner has classified TV viewer on two category. Student, here we have to understand that Gabner has classified viewer on two category. So which are that two category? First is high TV viewer who watch TV more than 4 hours on daily basis. कुछ लोग टीवी 4 घंटे से अधिक देखते हैं या उससे भी ज़्यादा, उसे कहा जाता है हाई टीवी व्यूअर. सो गैबनर ने दो तरीके से क्लासीफाइड किया है, एक है हाई टीवी व्यूअर और सेकंड है लाइट टीवी व्यूअर. यहाँ आप देख सकते हैं लाइट टीवी व्यूअर हु वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स, मतलब एक जो सेक्शन है वो 4 घंटे या उससे अधिक टीवी व्यू करते हैं और एक सेक्शन है जो 4 घंटे से कम अल्प उसमें टीवी व्यू करते हैं. तो ये दो कैटेगरी है. सो वी विल बी डिस्कसिंग हाई टीवी व्यूअर परसेप्शन. देखो मेन बेसिक थियरी क्या है कि हाई व्यूअर पे क्या होता है. गैबनर जो थियरी है वो लॉन्ग टर्म टीवी व्यूअर पे है, ना कि शॉर्ट टर्म टीवी व्यूअर पे. सो जो बेसिक सारा डिस्कशन होगा वो हाई टीवी व्यूअर को लेके ही होगा. ओके, सो नाउ देर आर 3 मेन फैक्टर्स associated to high TV viewer, that are mainstreaming, resonance and mean world index. So हम इसे एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है. सो जो लोग 4 घंटे या उससे अधिक टीवी देखते हैं उसे हाई टीवी व्यूअर कहा जाता है. उसमें 3 फैक्टर है. पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, हाई टीवी व्यूअर परसेप्शन ऑफ रियलिटी कंसिस्ट विद द व्यू ऑफ टीवी. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो 4 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं उनका परसेप्शन सारा का सारा टीवी देखने से आता है. मीन्स
what they see on television, they think that it is a reality. What they watch in TV, they reflect that it is also occurring in the main world. So student, is it true? So here we have to know that what is mainstreaming. So high TV viewer think that what is happening and what TV media is showing, it is all the thing right, and views are uh, their views are dependent on TV shows. Okay, so mainstreaming. Now what is mainstreaming? Common outlook on them, on political and economic. Now here we have to see that mainstreaming means common outlook, rather it be poor, rather it be rich category, rather it be businessman, rather it be labor, whichever common man he is viewing a TV, that all are having common perception toward political and economical. Means if TV is showing this political strategy is right, or this political system is right, then that viewer are also pursuing that they whatever TV is showing it is right. मतलब इसका मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट कि मेन स्ट्रीमिंग का ये मतलब होता है कि अगर टीवी में जो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही है, अगर चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो, चाहे एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड हो, चाहे बिजनेसमैन हो या चाहे लेबर हो, वो लोग 4 से ज़्यादा अधिक टाइम तक अगर टीवी को व्यू करते हैं तो उनमें एक परसेप्शन बनता है कि अगर टीवी में दिखाया जा रहा है कि पॉलिटिकल कोई सिस्टम मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी है, यही देश में लागू होनी चाहिए, सो ये जो कॉमन आउटलुक है वो सभी, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी 4 घंटे से ज़्यादा देखते हैं उनमें यही कॉमन आउटलुक बनेगी जो मीडिया की है. ठीक है, तो आपको मेन स्ट्रीमिंग समझ में आ गया. नाउ सेकेंड, ये हाई टीवी व्यूअर के बारे में 3 फैक्टर्स है, मेन स्ट्रीमिंग, रिसोनेंस एंड मेन वर्ल्ड इंडेक्स. तो हम सेकेंड पे आएंगे, रिसोनेंस. So what is resonance? Resonance occur when thing happen on TV and on common life. For example, you are walking in a street and someone, कोई किसी ने आके आपका को मोबाइल चोरी कर लिया, और यही न्यूज़, इसी टाइप की न्यूज़ चोरी की, थेफ्ट की बार बार टीवी में भी दिखाई जा रही है, तो आपको पहले आपको खुद को भी एक्सपीरियंस हो गया और टीवी में भी दिखा रहे, मतलब आपका परसेप्शन टीवी पे और पक्का हो गया मीडिया पे. तो आप तो भाई व्हाट वी कैन से, यू विल बी मोर इन्फ्लुएंस एंड योर परसेप्शन एंड टीवी व्हाट मीडिया इज शोइंग विल बी वन एंड द सेम. सो रिसोनेंस ऑकर व्हेन द टीवी थिंग्स हैपन ऑन टीवी एंड ए कॉमन लाइफ. आपके लाइफ में कुछ चीज़ें घटनाएं घट रही है और टीवी में भी वही टाइप की घटनाएं दिखा रहे, तो आपको लगेगा कि ये तो सच है, मेरे साथ भी हुआ है. ठीक है. और लास्ट जो है वो है मेन वर्ल्ड इंडेक्स. सो स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज मीन वर्ल्ड इंडेक्स? सो मीन वर्ल्ड इंडेक्स इज फाइंडिंग दैट वायलेंस इज फ्रिक्वेंटली कल्टिवेटेड द इमेज ऑफ द मेन एंड डेंजरस वर्ल्ड. तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन वर्ल्ड इंडेक्स. ये बहुत सारे एग्जामों में इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ मीन वर्ल्ड इंडेक्स. तो आपको अगर इस चीज़ का पता है तो आप उसे टैकल कर सकते हैं, आंसर को, क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं. सो मीन वर्ल्ड इंडेक्स इज़ नथिंग बट लगातार क्राइम के रिपोर्ट्स बताए जाएंगे, तो आपको ये आउटपुट आपको आने लगेगा, आपको ये समझ में आप ये परसेप्शन बनाने लगोगे कि दुनिया तो बहुत खतरनाक है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डेंजर. आपको ये लगने लगेगा कि भाई दुनिया में तो बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही है. फिर आप प्रिकॉशन लेने लगोगे, आप बहुत ही सतर्क हो जाओगे, आप मतलब बाहर निकलोगे तो आपको बस वही दिमाग में चलता रहेगा. तो यहाँ पे साफ लिखा गया है, फाइंडिंग दैट द वायलेंस इज़ फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड एंड इमेज ऑफ ए मीन एंड डेंजरस वर्ल्ड. मतलब दुनिया बुरी है,
दुनिया में सारे क्राइम ही चल रहे हैं, इसी तरीके की रिपोर्ट से एक हाई टीवी व्यूअर का एक व्यू बन जाता है दुनिया के बारे में कि दुनिया बहुत ख़राब है। ये एक तरीके का व्यू बन जाता है कि दुनिया में क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, ये सेफ जगह नहीं है, इस तरीके का एक व्यू बन जाता है। सो स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टैंड। हमने पहले भी एजेंडा सेटिंग थियरी देख ली थी, ये सेकंड थियरी थी कल्टीवेशन थियरी। हम लोग 4th चैप्टर कर रहे हैं स्टूडेंट। सो एजेंडा सेटिंग थियरी हमने देख ली थी और अभी कल्टीवेशन थियरी भी हमने कंप्लीट कर ली है। सो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गुड and you are enjoying the lecture. So this is enough for today.